السلام علیکم، سچ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں مدورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں گے کہ آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں شادی ہال کی 3 منزلہ عمارت گر گئی، متعدد مزدور ملبے تلے دب گئے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ میر عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی میر عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس میرپور آزاد کشمیر کے قریب چیکس باری کے مقام پر ایک 3 منزلہ عمارت اچانک زمین بوس ہو گئی اور متعدد جو مزدور ہیں وہ بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر سے ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بہت شکریہ میر عثمان آپ کا۔ پیٹرول بحران کا خدشہ عارضی طور پر ٹل گیا۔ معاون خصوصی برائے پیٹرول ندیم بابر کی جانب سے ہڑتال کا نوٹس لیے جانے کے بعد آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے جائز مطالبات متعلقہ اداروں تک پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم ڈویژن کے رابطے کے بعد ہڑتال ملتوی کر دی ہے اور اب پیر کو آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا وفد پیٹرولیم ڈویژن میں معاون خصوصی ندیم بابر سے ملاقات کرے گا۔ پیٹرول بحران کا خدشہ عارضی طور پر ٹل گیا ہے۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کی جانب سے ہڑتال کا نوٹس لیے جانے کے بعد آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم بحران ٹلنے کی امید پیدا ہو گئی۔ شدید ہولناکیاں سوچتے عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ آئل ٹینکرز کی ہڑتال کے دوسرے روز وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم کو عوام پر رحم آ ہی گیا اور انہوں نے ہڑتال کا نوٹس لے لیا۔ ندیم بابر نے آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ اوگرا سمیت متعلقہ اداروں کو مذاکرات میں شرکت کی ہدایت بھی کر دی۔ معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر پیر کے روز خود مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے نمائندگان مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ایڈیشنل انکم ٹیکس، صوبائی سروس سیلز ٹیکس اور ٹول ٹیکس میں اضافے پر بات ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد اور کمرشل لوڈنگ پر پابندی بھی زیر غور آئے گی۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر بنائی گئی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لیں۔ کمیٹی کل نیپرا کو رپورٹ پیش کرے گی۔ کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر بنائی گئی 4 رکنی تحقیقات کمیٹی نے تحقیقات کی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کی جانب سے رپورٹ کل نیپرا کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ نیپرا اتھارٹی رپورٹ کی روشنی میں کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کرے گی۔ گزشتہ ہفتے نیپرا کی جانب سے کھلی سماعت کے دوران مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے انبار لگائے تھے۔ نیپرا کی جانب سے تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی میں تحقیقات مکمل کر کے کمیٹی کے ارکان اسلام آباد پہنچے گئے تھے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے دعویٰ کیا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال ہے، نہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ نہیں، تکنیکی وجوہات پر لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ سندھ میں 20% فیڈرز ہائی لاسز ایریا میں ہیں، لوگ کنڈا لگا کر بجلی استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرک نے اپنا ڈسٹریبیوشن نظام میں انویسٹمنٹ نہیں کی۔ نمبر 2، جو آپ کا سینٹرل ڈیلیوری پوائنٹ ہے، آپ سمجھ لیں آپ اہم زبان میں وہ پلگ جہاں سے نیشنل گریڈ سے وہ بجلی لے سکتے ہیں۔ اس وقت جو ان کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے 650 میگا واٹ، اس سے زائد ہم لوگ دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہمارا سسٹم نیشنل گریڈز کا 500 kV پہ چلتا ہے، وہ ان کا سسٹم 220 کا ہے۔ انہوں نے 500 kV کے گریڈ سٹیشن بنانے ہیں 2، وہ فروری 2022 تک بنیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ بنوائیں گے ان سے۔ اس سے انٹرم میں ان کا ایک LNG پلانٹ بھی آ رہا ہے، اگلے سال یہ سچویشن بہتر ہو جائے گی۔ اور اس وقت جناب چیئرمین جو معاہدہ ہے یہ الیکٹرک کے ساتھ وہ ہے 190 MMCFT گیس کا، اس سے زیادہ ہم لوگ دے رہے ہیں۔ اس وقت اوسطن جو گیس مل رہی ہے وہ 100 MMCFD کے الیکٹرک کو ہم لوگ زیادہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 40,000 ٹن تیل RFO ہم لوگ کے الیکٹرک کو اس وقت ہم لوگوں نے ان کے لیے مختص کر کے دے بیٹھے ہیں۔ اور اس وقت ڈومیسٹک پروڈکشن RFO کا پاکستان کا تقریباً 80% حصہ کے الیکٹرک کو ہم نے مختص کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ جا رہا ہے۔
मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो कराची में सावन की मस्तियां जारी हैं। हवाओं से घनघोर मंडलाते बादलों और बारिश ने शहरियों को महसूर कर रखा है। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरसने की नवीद सुनाई है। रोशनियों के शहर में मीगा बरसने को तैयार, सावन के बदलते रंगों से शहरी महसूस हो रहे हैं। धूप, छांव, बादे सबा और बरसती बारिश ने माहौल को काबिले दीद बना रखा है। कराची में रहमत को जहमत बनते देर नहीं लगती, लेकिन शहरी तकालीफ को भूलकर मौसम एंजॉय करने में मशगूल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दूसरे सिलसिले के तहत शहर में गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश बरसने का इम्कान है। बारिश से कबल शहर में आंधी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मानसून का दूसरा सिलसिला शहर में एक रोजा बारिशों का सबब बनेगा। अंदरूनी सिंध के मुतादिद मकामात पर भी बारिश हुई। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, सजावल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली गायब होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बालाई पंजाब, मशरिकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पुख्तनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब में हवाएं चलने के अलावा बारिश भी हो सकती है। बागों के शहर लाहौर में बादल फिर खुलकर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने समा बांध दिया। मौसम का ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए लाहौर से हमारे साथ जैन नकवी मौजूद हैं। जैन, लाहौर का मौसम कैसा है? देखते ही देखते यकायक जो है वो बारिश बरसी और बादल जो है उन्होंने लाहौर शहर को अपने लपेट में ले लिया। अब सूरत हाल ये है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बारिश जो है वो रुक चुकी है, लेकिन अभी भी जो है वो शहर के ऊपर जो है वो काले से घने बादलों का जो राज है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में आज वक्फे से जो बारिश है वो होने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि जो ही बारिश हुई तो बारिश होते ही जो शहरी सड़कों पर मौजूद थे उन्होंने खुद को जो है वो महफूज जगह पे जो है वो महसूर किया। कोई पुलों के नीचे चले गए या इस जगह पे जहाँ पे बारिश नहीं होती उन जगहों पे जो है वो पनाह ली। लेकिन बारहा जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जब भी बारिश होती है, मानसून का सीज़न आता है, तो ये पैगाम दिया जाता है कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर होने से बचाने के लिए जो पुल हैं और जो महफूज जगह हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे शहरियों को खड़े नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कि जो ही बारिश हुई तो शहरी जो है उन्होंने जो महफूज जगह है जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे पनाह ली और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो वहाँ मौजूद तो थे, लेकिन शहरियों को वहाँ हटाते नजर नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में बारिश तो थम चुकी है और अब बारिश होने के बाद जो है वो हब्स का राज जो है वो बरकरार है। लेकिन महकमा मौसमियात ने शहरियों को नवीद सुनाई है कि आज जो है वो मुख्तलिफ वक्त में जो है वो बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से शहरी खुश नज़र आते हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो बारिश अगर हुई तो गार्डन टाउन के इलाका है, जौहर टाउन, इसके अलावा मॉडल टाउन के इलाकों में जो है वो बादल जो है वो खुल के बरसे हैं। लेकिन अब जो है वो हवा मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है और बारिश जो है वो भी थम चुकी है, जिसकी वजह जो है हब्स का राज जो है वो इस वक्त शहर में है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हमने देखा कि जैसे ही बादल बरसे तो लेस्को की जानिब से जो है वो हमेशा की तरह से चंद इलाकों में जो है वो बिजली गायब हो गई। तकरीबन 3 से 4 फीडर जिन इलाकों में जो हैं वो अभी ट्रिप हो चुके हैं। लेस्को काम का कहना है कि जो ही फीडर सूखेंगे, ट्रांसमिशन लाइनें सूखेंगी तो बिजली के निज़ाम को जो है वो बेहतर बना दिया जाएगा। जी, बिजली के निज़ाम को बेहतर बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के बरसाती नालों की सफाई ताहाल ना हो सकी। बरसाती नालों ने कचरे की चादर ओढ़ी हुई है। नालों के करीब बसने वाले शहरी भी शदीद परेशान हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अता हुसैन गुज्जर नाले पर मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। अता, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आज से कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है, मगर शहर में मौजूद जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई ताहाल नहीं की गई। शहर के बेशतर नालों में जो है वो कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इस वक्त मैं गुज्जर नाले पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ दिखाए कि यहाँ के नाले की बस से बदतर सूरत हाल हुई है। नाला जो है वो नाले के ऊपर कचरे की चादर है और पूरा कचरा जो है बेतहाशा यहाँ मौजूद है। जबकि अगर मेरा कैमरामैन उल्टे हाथ की जानिब आपको यहाँ पे दिखाए तो यहाँ पे एक मशीन मौजूद है। हालांकि इस नाले के ऊपर कम से कम
6 से 7 जो है हैवी मशीनरी के तहत काम होना चाहिए था, मगर यहाँ पे एक मशीन मौजूद है, वो भी खराब है। यहाँ लाने के बाद उसको यहीं पे ऐसे रखा हुआ है, उसका अब तक कोई उसको ठीक नहीं कराया गया कि नाली की सफाई की जाए। और इस नाले के एतराफ में जो है बहुत बड़ी रहायशी आबादी मौजूद है। ये नाला जब गुज़िश्ता बरस भी बारिशें हुई थी तो ये नाला ओवरफ्लो होने के बाद जो है मकीनों के घरों में पानी दाखिल हो गया था, जिसके बायस जो है जो मकीन है वो शदीद परेशान थे, जो नकल मकानी करने पे भी मजबूर हुए थे। जबकि बारिशों से चंद रोज कबल ही जो है वज़ीर आला सिंध ने जो है कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि शहर के तमाम तर नालों की सफाई की जाए, बर वक्त सफाई की जाए, ताकि बारिश के बाद जो है जो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं उन मसाइल का जो है वो सामना ना करना पड़े। लेकिन अब तक जो है शहर के बेशतर नाले हैं उनकी भी ताहाल सफाई नहीं की गई है। मकीन काफ़ी परेशान है, जबकि नालों की सफाई के लिए हर साल जो है फंड्स भी रिलीज़ किए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए रिलीज़ किए जाते हैं कि बर वक्त नालों की सफाई की जाए, लेकिन वो फंड्स कहाँ जाते हैं अब तक इसका किसी को नहीं मालूम। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के चुलिस्तान में बारिश न होने से खुश्कसाली और पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से कई जानवरों की भी अमवात होने लगी हैं। चुलिस्तान के मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हैं। रहीम यार खान के चोलिस्तानी इलाके में पानी की किल्लत का मसला गंभीर हो गया है। बारिशें ना होने और खुश्कसाली के बाइस बेजुबान जानवरों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। चोलिस्तान में दर्जनों जानवर पानी को तरसते तरसते हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों मवेशी मौत के मुंह में जाने के मुंतजिर हैं। गर्मी की शिद्दत और पानी की शदीद किल्लत के बाइस झाड़ियां और जड़ी बूटियां सूख गई हैं। मवेशियों का चारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, जबकि चोलिस्तान में बनाए गए बारिश का पानी जमा करने वाले बेशतर तालाब भी मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं। जिन तालाबों में थोड़ा बहुत गदला पानी मौजूद है, वहां पर इंसान और जानवर दोनों एक ही जगह से इस वक्त ये जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जहर आलूदा और गदला पानी पीने के बाइस चोलिस्तान के बासी इस वक्त मुख्तलिफ तरह की जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। अगर जल्द ही पंजाब हुकूमत ने रहीम यार खान के इस चोलिस्तानी इलाके पर तवज्जो ना दी तो सिंध के रेगिस्तानी इलाके थर की तरह यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इंसानी जिंदगियों को खतरनाक जानलेवा हालात का सामना करना पड़ सकता है। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एक और सबूत, हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अता हुसैन से मजीद तफसीलात जानेंगे। अता हुसैन, इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में कार्रवाई के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कराची में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। हवाला हुंडी के खुफिया नेटवर्क के जरिए जो है मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराम की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन जो है वो बरामद कर लिया गया है, जबकि मुलजिम यासीन को सदर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुलजिमान की तलाश में जो है FIA छापे मार रही है, जबकि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर मुलजिमान की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है भारतीय सफारतकार कुलभूषण के साथ बात करने से कतराते रहे। भारत की बदनीयती खुलकर सामने आ गई। भारत साजिशें करते करते खुद तन्हा हो गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अपने बयान में कहना था भारत पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था, लेकिन अब खुद तन्हा हो चुका है। कल भारतीय सफारतकार कुलभूषण की कोई बात सुने बगैर चले गए। कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सफारतकार बात करने से कतराते रहे। भारत की बदनीयती खुलकर सामने आ चुकी है, ये रसाई नहीं चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि CPEC में ईरान की शमूलियत और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फायदा सबको होगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के वाकयात न रुक सके। पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में सरहद पार फायरिंग से 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का सरहदी इलाका बना एक बार फिर अफगान दहशतगर्दी का निशाना। 3 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया और 2 फौजी जवानों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए नजदीकी मरकज पहुंचा दिया गया है और शहीदों की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। माजी में भी अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर फायरिंग की जाती रही है, जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। अफगान सरहद से पाक फौज की चौकियों को भी निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2000 किलोमीटर से ज्यादा तवील सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है।
ये बाढ़ शरपसंद अनासर की बॉर्डर क्रॉसिंग को रोक देगी और पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियां कम होंगी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने के अमल में रखना डालने के लिए दहशतगर्द और दीगर शरपसंद अनासर तखरीबी कार्रवाइयां करते रहते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई के गैर कानूनी ठेकों पर नैब रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत लिख दिया है। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए रजिस्ट्रार कराची एहतसाब अदालत को खत, आसिफ अली जरदारी की शिनाख्त के लिए अदालती नुमाइंदा भी मुकर्रर करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी घर हों या अस्पताल, वीडियो लिंक इंतजाम करें। नैब कराची आसिफ अली जरदारी की अदालत हाजिरी यकीनी बनाए। 4 अगस्त को आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद होगी। आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटमैन के जरिए गैर कानूनी ठेके दिए, करप्शन की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नेपरा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन नेपरा की तैनाती का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं असलम खोकर से। असलम, चेयरमैन नेपरा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? मोहसिन अफरकियानी ने 2 सफात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें सेक्रेटरी काबीना चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी को प्री एडमिशन नोटिस जो जारी कर दिया गया और इसके साथ साथ उनकी जो तैनाती का रिकॉर्ड है वो जवाब के साथ जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। आज दरख्वास्तगुजार ने चेयरमैन नेपरा की तैनाती में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनका ये कहना था कि कानून की जो है खिलाफ वर्जी की गई है, मुरवजा जो तरीक़ेकार होता है उसको फॉलो नहीं किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें मुकम्मल तौर पर कानून को एक साइड पे रखा गया और चेयरमैन नेपरा की जो तैनाती के लिए बुलाए गए सिलेक्शन कमेटी के इजलास की जो कार्रवाई है उसको भी कवरेज नहीं किया गया। तैनाती के बाद से चेयरमैन नेपरा खुद को मराहत दे रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, जिस पर अदालत ने उनसे जवाब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे। सखर में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग दौरान 10 देहात में 16 घंटे तक पहुंच गया। घरों में रहना ही मुश्किल हो गया है। शहरियों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सखर में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 जबकि देहातों में 16 घंटे तक पहुंच गया है। घरों में रहना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने नैब लाहौर में दूसरी पेशी भुगत ली। नैब की तफ्तीशी टीम ने ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटे तक तफ्तीश की। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने रिकॉर्ड का जायजा लेना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने नैब लाहौर में दूसरी पेशी भुगत ली। नैब की तफ्तीशी टीम ने ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटे तक तफ्तीश की। नबील नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी नबील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को आज नैब लाहौर में टेंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब कर रखा था। ख्वाजा आसिफ टाइम से 1 घंटा कबल ही जो है वो 11 बजे उसको नैब ऑफिसों पर तलब किया गया था। तमाम 10 बजे तो आज ख्वाजा आसिफ नैब ऑफिस पहुंचे और 1.5 घंटा तक नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने थे, उनके सवालात के जवाब देते रहे। आज से पहले में ख्वाजा आसिफ 3 जुलाई को पेश हुए थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ की जानिब से किए गए सवालात पर नैब ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था। हम आज दोबारा तलब किया जाए था आज और नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज किए गए सवालात के जवाब का जायजा भी लेना शुरू कर दिया था। हम बारिश होने के बाईस को ख्वाजा आसिफ पेशी के वापसी के मौके पर मीडिया टॉक की नहीं कर सके थी। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि हमजा शहबाज के शरीक 6 मुल्जिमान को जेल हुकाम ने कोरोना के बायस पेश नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एक मुल्जिम से तफ्तीश होना बाकी है। हुक्मनामे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमजा मुल्जिम से तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर तफ्तीश मुकम्मल होते ही बगैर ताखीर रेफरेंस दायर करे और मुल्जिम हमजा शहबाज को जुडिशियल रिमांड के बाद 28 जुलाई को पेश किया जाएगा। वफाकी वजारत दाखिला ने अमरीकी खातून शहरी सिंथिया डी रिची को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो किसी गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अमरीकी खातून शहरी सिंथिया डी रिची को मुल्क बदर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंथिया को
डिपोर्ट करने से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें वजारत दाखिला ने सिंथिया डिरोची को क्लीन चिट देते हुए इनका वीजा 31 अगस्त तक दुरुस्त करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिंथिया गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। गैर मुल्कियों के वीजों में 31 अगस्त तक तोसी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को फैसले की कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज में कोरोना के इलाज के अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो मार्केट से गायब हो जाती है। वफाकी वजीर को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आम आदमी का क्या हाल है? लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस के इलाज की अद्वियात दस्तयाब न होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना वायरस के इलाज की अद्वियात दस्तयाब नहीं, जिस पर अदालत ने 3 रोज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस वाजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो मार्केट से गायब हो जाती है। वफाकी वजीर को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आम आदमी का क्या हाल है? अद्वियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंसानी जिंदगियों का मसला है, खामोश नहीं रह सकते। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 49 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,83,737 अफराद सेहतयाब हो चुके। मुल्क में 2,085 नए केसेस रिपोर्ट हुए। स्मार्ट लॉकडाउन की बदौलत मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 1,83,737 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 70,787 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2,085 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद 2,59,999 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 49 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,475 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 23,960 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 733 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 2,939 कोरोना मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,825 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इस वक्त 323 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर नहीं। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में बदतरीज कमी हो रही है। जून से जुलाई के दरमियान कोरोना के मुस्बत केसेस में 50% कमी हुई है। यौमिया टेस्टिंग के हवाले से मजीद जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, यौमिया टेस्टिंग में मुस्बत केसेस की तादाद कम होने लगी है? बिल्कुल, जून से जुलाई के दरमियान कोरोना की मुस्बत केसेस में 50% तक कमी हो चुकी है और अब बदतदरीज जो है शरह में कमी जा रही है। यौमिया टेस्टिंग में मुस्बत केसेस की तादाद जो है वो भी कम होने लगी है और 29 अप्रैल को मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह जो थी सबसे ज्यादा थी, जो कि 10.21% थी। उसके बाद 14 जून को भी है वो दुगनी हुई और 22.45 तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो सूरत में बेहतरी आना शुरू हुई, जो कि जून से जुलाई के दरमियान मुस्बत केसेस में 50% कमी का सबब बनी। 12 जुलाई को कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह वापस कम होकर 11.44% पर आ गई थी और 11 जून को ही मुल्क भर में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में भी जो है 56% कमी जो है देखने में आ रही है, जो कि अब 20 जून को सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए थे, जो कि 31,687 टेस्ट थे। लेकिन उसके बाद से मुसलसल जो टेस्टिंग में भी कमी देखने में आ रही थी और साथ साथ केसेस में भी कमी देखने में आ रही थी। लेकिन अब दोबारा से जो है टेस्टिंग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। केसेस है और अमवात की शरह जो है उसमें काफी हद तक जो है कमी देखने में आ रही है, जो कि एक मुस्बत जो है इशारा है इस तरफ। उसकी दूसरी तरफ देखा जाए यौमिया टेस्टिंग में 31,600 से कम होकर अब जो है मजमूई तौर पर 24,496 तक जा पहुंची है, जो कि तकरीबन 7-8 हजार जो टेस्टिंग है वो रोजाना की बुनियाद पर जो पहले किए जाते थे, ज्यादा किए जाते थे, अब उनमें कमी देखने में आ रही है और कम होकर 7,000 जो है यौमिया जो कमी देखने में आ रही है टेस्टिंग में और वो रिकॉर्ड की गई है और साथ साथ केसेस में भी जो है कमी देखने में आ रही है। जी, केसेस में कमी देखने में आ रही है। सज्जाद काज़मी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आटा चक्की मालकान भी महंगाई की बहती गंगा में हाथ धोने लगे। आटा चक्की मालकान ने खुद आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। 55 से 60 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने वाला आटा अब 65 से 70 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा आटा चक्की मालकान का क्या कहना है, आटा क्यों महंगा दे रहे हैं? जी, पहले आम आटे की कीमत में तो इजाफा कर दिया गया था और अब जो आटा चक्की मालकान हैं उनकी जानिब से भी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफा किया गया था और 20 किलो का जो आटे का थैला है
वो 1000 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा था और बाज़ जगहों पर 1100 रुपये तक भी उसकी कीमत है वो पहुंच चुकी थी, जिसके बाद हुकूमत इन एक्शन हुई और जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत 860 रुपये मुकर्रर की और ये भी कहा गया कि तमाम मार्केट में 860 रुपये का आटा दस्तयाब होगा। लेकिन उसके बाद आटे की शॉर्टेज हो गई और अब भी मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 20 किलो का थैला जो है वो दस्तयाब नहीं, और अगर है भी तो 860 रुपये से भी ज़ायद बेचा जा रहा है। शहरी भी खासे से मुतासिर दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी आप बताइएगा कि कितना असर पड़ेगा एक आम शहरी पे, कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। पहले 60 रुपये मिलता था, अब 70 रुपये हो गया। इनसे पूछो ये कहते हैं गंदम महंगी हो गई है। ठीक, कोई चीज़ जो ऐसी नहीं है जिसमें 50% से ऊपर महंगाई ना हुई हो। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम नहीं है और मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आटे की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आटा चक्की के मालकान जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, इजाफा मुसलसल किया जा रहा है, इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? इजाफा किस कर रहे हैं कि गंदम ही नहीं मिल रही है। गंदम जो मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से मजबूरी हमें करना पड़ रहा है। नहीं तो जब सस्ती तो हम सस्ता बेच रहे थे, अभी भी हमारे पास पहली पड़ी हुई गंदम हम 60 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन जब नहीं लेने गए मार्केट में तो गंदम का रेट 21 रुपये मन मिल रहा है। ये फर्स्ट टाइम है। जी बिल्कुल, आटा चक्की मालकान हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि जो कीमतों में इजाफा किया गया है उसकी वजह यह है कि हुकूमत ही जो सस्ती गंदम है वो फराहम नहीं कर रही और इसीलिए जो है वो इनको भी जो कीमतें हैं उसकी बढ़ाना पड़ी हैं। और अब जो फ़ी किलो आटे की कीमत में इजाफा होने के बाद 70 रुपये किलो में आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। इससे पहले 55 से 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था और बाज़ जगहों पर 65 रुपये किलो। और अब जो है आटे की कीमतों में इजाफा होने के बाद 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और 70 से 75 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी वेलकम बैक। रुख करेंगे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा का, जहां दीगर अशिया ज़रूरिया की तरह बढ़ती हुई महंगाई ने खुश्क मेवाजात को भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर खुश्क मेवाजात बलूचिस्तान के दिलफरेब और पुरकशिश सकाफत का अहम जुज़्व हैं। यहाँ पाए जाने वाले खुश्क मेवाजात अपने मखसूस जायके के बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ दीगर अशिया खुर्दनोश आम लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, वहीं इन खुश्क मेवाजात की कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब नहीं ले सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें ले नहीं सकते। ऐसे लोगों के बस में है तो ले रहे अमीर लोग, और जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते। ताजरों के बकौल हुकूमत खुश्क मेवाजात की टैक्सों में कमी करके इनकी कीमतों में इस्तेहकाम ला सकती है। टैक्स में जो है थोड़ा हम लोगों के साथ रियायत कर दे, ताकि फिर टैक्सेस जब कम हो जाए फिर हमारे जो कम इसका कीमत भी कम होएगा और गरीबों के लिए अमीरों के लिए सबके लिए फिर एक जैसा होएगा। खुश्क मेवाजात बलूचिस्तान में बसने वाले लोग अपने दोस्तों, अजीज व अकारिब और मेहमानों को सौगात के तौर पर भी पेश करते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। पेशावर में मवेशी मंडियां सस्ते ही खूबसूरत जानवरों ने भी एंट्री दे दी है। बॉलीवुड शहनशाह के बाद पेशावर की रिंग रोड मंडी में भी शहनशाह के चर्चे हैं। मजीद जानते हैं पेशावर से अवैस महमूद से। अवैस महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा आते ही मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन खूबसूरत और तनावर जानवर जो है वो भी लाए गए हैं। मैं इस वक्त सबसे बड़ी मंडी जो है वो रिंग रोड पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे एक बैल है जिसकी कीमत जो है वो 5 लाख रुपए। इसका नाम भी ऐसा नाम है कि शहनशाह, जो आपने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन इसका नाम भी शहनशाह, इसकी अदाई भी शहनशाह की तरह है। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अरे सर, क्या कहेंगे, कहाँ से लाए हैं इसको, आप क्या खिलाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो ये बाबल नगर से लाया, अब बाबल नगर से इधर इसका साथ कल खिलाते है, भूस खिलाता है और वंडा खिलाता है, बस ये इसका कान है। अच्छा सर, आप इसकी जो कीमत है वो 5 लाख रुपए बोल रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत जो है वो कितनी लगी है और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इसका कीमत 3 लाख लगी हुई है। शाम को हम नहीं दिया था, हम उसका बताइए कम है। ये दो दांत वाला है, 4 वाला नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने व्यापारी की बात सुनी, व्यापारी का भी यही कहना है कि इस बैल को हमने बहुत ही नाजों से पाया है, तभी इसकी 5 लाख रुपए जो कीमत बताई जा रही है, जबकि 3 लाख रुपए जो है वो इसकी कीमत पड़ चुकी है। लेकिन व्यापारी का ये भी कहना है कि हम इतना खूबसूरत जानवर है और नाम भी शहनशाह है, जिसकी वजह से इसकी कीमत जो है वो वसूल की जाएगी। अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान करीब आते ही परदेसियों ने आबाई शहरों को वापसी के लिए पर तोलने शुरू कर दिए। लाहौर आने और जाने वाली तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% पूरी हो गई। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी।
عید پر آبائی علاقوں میں واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عید قریب آتے ہی دوسرے شہروں سے روزگار اور دیگر کاموں کے لیے لاہور آنے والوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حسب سابق اس عید الاضحیٰ پر بھی لوگوں کی واپسی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اپنے سے ملنے کے منتظر لوگوں کی واپسی کے باعث ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ عید سے پہلے اور 10 دن بعد کی ایڈوانس بکنگ مکمل ہو گئی۔ لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینوں کی سیٹوں کی ٹکٹیں فروخت ہو چکی۔ کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ٹرین آپریشن محدود چلایا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق ریلوے سسٹم پر اس وقت 40 ٹرینیں صرف 60% آکوپنسی کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں، جس کے باعث مسافروں کے لیے ٹکٹوں کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اضافی بوگیوں یا ٹرینوں کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین محمد مبشر کے ساتھ نبین لقوی، سچ نیوز، لاہور۔ پی آئی اے کا طیارہ بوئنگ 777 کانگو کے عالمی ہوائی اڈے گوما پر کامیابی سے لینڈ کر گیا۔ 320 مسافروں کے ہمراہ پی آئی اے کے بوئنگ طیارے کی کسی بھی افریقی ملک کے لیے یہ پہلی فلائٹ ہے۔ انسانیت کا دشمن مظلوموں پر قہر ڈھانے سے باز نہ آیا۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیز کارروائیوں میں مزید 4 کشمیری شہید کر دیے۔ وادی میں جبری پابندیاں تاحال برقرار ہیں۔ قابض فوج کی کارروائیوں میں رواں ماہ 18 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ لہو رنگ وادی جنت نذیر کا چپا چپا خود پر گزرے ان گنت مظالم کی داستان سنا رہا ہے۔ ایک طرف وبائی حملوں نے کشمیریوں کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تو دوسری طرف بھارتی درنداز فوج ہے کہ ہر روز مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلنے میں مصروف ہے۔ شیطان صرف تہلکار سورج غروب ہوتے ہی وارداتوں کی انجام دہی کو نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اغوا، قتل، لوٹ مار، عصمت دری بھارتی فوج کی شناخت بن چکی ہے۔ مہلک وبا کے تدارک کی آڑ میں قابض انتظامیہ نے کشمیریوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ مقامی ڈاکٹرز پر طبی سرگرمیاں انجام دینے پر پابندی، زرخرید ڈاکٹرز تعینات کیے گئے ہیں۔ کشمیری خوف زدہ ہیں کہ کہیں علاج کے بہانے انہیں مزید جانی خطرات سے دوچار نہ کر دیا جائے۔ مقبوضہ وادی میں اگست 2019 سے مسلسل کرفیو نافذ ہے۔ اشیاء خورونوش کی ترسیل پر پابندی عائد ہے۔ بیماروں کو دانستہ موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جان بچانے والی ادویات کی فراہمی معطل ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل فون اور لینڈ لائن سروسز بھی معطل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافتی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔